A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjri Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English of Standard 3rd. Well students, we are going to start a new lesson today with the name lesson number 7, the what not tree, on page number 55. So open your book and find page number 55. Lesson number 7, the what not tree. Okay students, so first of all I will going to read the full lesson with its proper pronunciation. You all have to pay attention to the unit, to the lesson and listen to me carefully, and after that I will give explanation of the whole unit. Okay, so the what not tree, जो एक इसका मतलब होता है यूनिट का कि वो एक ट्री है ही नहीं, the what not tree. In the yellow box, in how many ways are trees useful to us? Listen, ये lesson about tree है, so tree के बारे में यहाँ पर कुछ कहा गया है. In how many ways are trees useful to us? कितने तरीकों से trees हमें useful है. Each one of you think of one way in which a tree is useful to us. आप सभी को कोई एक वे ढूंढना है कि ट्रीज हमें किस किस तरह से यूजफुल है. इन आवर प्रीवियस सेशंस वी ऑल्सो लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रीज इन डिटेल्स. ओके, वी ऑल्सो डू टास्क अबाउट importance of trees as well. So today is also same task कि आपको ये ढूंढ निकालना है कोई एक ऐसा वे जो हमें trees की usefulness दिखाता हो. Okay, now I am going to read the lesson. Please listen to me carefully. Long ago, there was a wise trader in a village. He travelled with other traders from his village to many other villages to sell his goods. They usually went in a caravan. One of these trips, they had to go through a thick forest. Before entering the forest, the trader called together all the members of the caravan. He warned them, "My friends, when you go through this forest, be careful to avoid poisonous trees, fruits, leaves and flowers. Do not eat anything that you have not eaten before, whether it is a fruit, leaf or flower, without asking me." "Yes, sir," they said respectfully. There was a village at the end of the forest. Just outside the village stood a tree called a what not tree. Its trunk, branches, leaves, flowers and fruits looked very similar to those of a mango tree. Even the color, shape, smell and taste were almost the same as that of a mango tree. But unlike a mango, the what not fruit was poisonous. The caravans that went ahead came upon the what not tree. The traders were all hungry and the what not fruits looked like delicious ripe mangoes. But they remembered their leader's warning. They decided it would be safer to pay heed to the warning given by their caravan leader. When the leader arrived at the tree, the ones who had seen the tree and its delicious fruits asked, "Sir, what is this tree? Is it safe to eat the fruits?" After investigating the tree, the leader replied, No, this may look like a mango tree, but it is not. It is a poisonous what not tree. Don't even touch it. In the past, many such caravans had come to the what not tree. The people in the caravans had eaten its poisonous fruits
and died in their sleep during the night. The next morning, the local villagers would come to the campsite after burying the dead. They would take away all the goods and bullock carts of the caravan. This time too, the villagers thought they would do the same. They had seen the caravans near the tree the previous day. At dawn the next morning, the villagers ran toward the whatnot tree. But when they reached the whatnot tree, they got a real surprise. All the traders who had come in the caravans were alive and well. They were looking their own food and getting ready to eat. Astonished, the villagers asked the caravan leader, "How did you know this was not a mango tree?" He replied, "I noticed two things about the tree. First, this tree is easy to climb, and second, it is right next to a village. When it is so easy to climb this tree, how it is that no one has plucked the fruits? If the fruits on such a tree remain unplucked, they cannot be safe to eat." The leader's wisdom saved the caravan. Okay, students, I have read the lesson with its proper pronunciation. You have to also read this lesson at your home. Okay, now we are going to explain in details the whatnot tree. Okay, long ago there was a wise trader in a village. Trader means व्यापारी. Okay, बहुत समय पहले there was a wise trader, एक बहुत ही वाइज यानी कि समझदार, ट्रेडर यानी कि व्यापारी एक गांव में था. बहुत समय पहले एक समझदार बुद्धिशाली व्यापारी गांव में था. He traveled with other traders from his village to many other villages to sell his goods. Traveled यानी कि मुसाफरी करना. ओके, ट्रांसपोर्टेशन करना. विथ अदर ट्रेडर्स यानी कि दूसरे व्यापारियों के साथ. फ्रॉम हिज विलेज टू मैनी अदर विलेजेस, अपने गांव से दूसरे गांव पर वो अपने दूसरे व्यापारियों के साथ, ये जो वाइस ट्रेडर था वो ट्रैवलिंग करता रहता था टू सेल हिज गुड्स. गुड्स मीन उसका माल सामान. अपने माल सामान को बेचने के लिए वो जो वाइस ट्रेडर था वो अपने दूसरे साथी ट्रेडर्स के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर ट्रैवलिंग किया करता था. दे यूजुअली वेंट इन ए कारवा. कारवा मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, especially traders traveling together across a desert in Asia or North Africa. कारवा का मतलब होता है एक पीपल्स का ग्रुप, और ये कारवा जो वर्ड है वो स्पेशली ट्रेडर्स के लिए यूज़ किया जाता है जो एक साथ मिलकर चलते हुए अपने कार्ट्स, केमल्स या फिर अदर एनिमल्स के साथ एक गांव से दूसरे गांव अपना सामान बेचने के लिए जाया करते हैं. ओके, उनका जो ग्रुप होता है उनको क्या कहा जाता है? कारवान्स. कारवा इज़ अ कलेक्टिव नाउन वर्ड. ओके, ये वर्ड हमने हमारे जी के यूनिट कलेक्टिव नाउन में भी समझा था. ठीक है, ये कारवान्स मोस्टली एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका के डेजर्ट के जो इलाके हैं वहाँ पर पाए जाते हैं. वन ऑफ दिस ट्रिप्स, उनकी एक ट्रिप में दे हैड टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट. उनको एक थिक फॉरेस्ट यानी कि घना जंगल, एक ट्रिप में उन लोगों को, उन कारवां को, उन सारे ट्रेडर्स को एक घने जंगल से होकर गुजरना था. बिफोर एंटरिंग द फॉरेस्ट में एंटर करने से पहले द ट्रेडर कॉल्ड टुगेदर ऑल द मेंबर्स ऑफ द कारवा. जंगल के अंदर प्रवेश करने से पहले, एंटर करने से पहले जो कारवा है उनका लीडर था, उसने क्या किया? सभी ट्रेडर्स को इकट्ठा किया एंड देन
माई फ्रेंड्स ही वॉन्ट देम यानी कि ही वॉन यानी कि आगाह करना। वो जो लीडर है उसने सारे ट्रेडर्स को आगाह किया। माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों, व्हेन यू गो थ्रू दिस फॉरेस्ट, जब आप इस फॉरेस्ट से गुजरोगे, बी केयरफुल टू अवॉइड पॉइजनस ट्रीज। अवॉइड मीन्स टू कीप अवे समथिंग फ्रॉम समवन। अवॉइड करना, टू कीप अवे टू समथिंग फ्रॉम समवन यानी कि कुछ ऐसी चीज़ हो जिसको दूर रखना, राइट। सो उसने कहा कि मेरे दोस्तों, आप सब जब इस जंगल में से गुजरो तब आपको एक चीज़ अवॉइड करनी है, और वो क्या है? टू अवॉइड पॉइजनस ट्रीज, फ्रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स। आपको इस जंगल के ट्रीज, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इन सभी को अवॉइड करना है, उनसे दूर रहना है, क्योंकि वो सभी पॉइजनस यानी कि जहरीले हैं। डू नॉट ईट एनीथिंग दैट यू हैव नॉट ईटन बिफोर। आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है जो आपने कभी पहले ना खाई हो। वेदर इट इज़ अ फ्रूट, लीफ और फ्लावर, चाहे वो पत्ती हो, फूल हो या तो फ्लावर हो। विदाउट आस्किंग मी, मुझसे पूछे बगैर इनमें से कोई भी चीज़ आपको खानी नहीं है। यस सर, दे सेड रिस्पेक्टफुली। यस सर, दे सेड रिस्पेक्टफुली मीन्स जो कारवा के अन्य ट्रेडर्स थे उन्होंने सम्मति दी अपनी, ठीक है। रिस्पेक्टफुली यानी कि आदर से कहा कि ठीक है सर, हम जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही करेंगे। देन देयर वॉज अ विलेज एट द एंड ऑफ द फॉरेस्ट। फिर क्या हुआ? वो फॉरेस्ट में से पसार हो गए, गुजर हो गए। तब क्या हुआ कि एंड में, फॉरेस्ट के एंड में एक विलेज पड़ता था, एक विलेज आता था। जस्ट आउटसाइड द विलेज स्टूड अ ट्री कॉल्ड अ व्हाट नॉट ट्री। आउटसाइड ऑफ द विलेज यानी कि विलेज स्टार्ट हो उससे पहले विलेज के स्टार्टिंग में ही एक ट्री था जिसका नाम था व्हाट नॉट ट्री। इट्स ट्रंक, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स लुक्ड वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ मैंगो ट्री। उसकी जो ट्रंक यानी कि उसका जो तना है वो, उसके फ्रूट्स, उसकी पत्तियाँ, उसकी डालियाँ, उसका कलर, उसका स्मेल, वो जो ट्री था गांव के बाहर, उसका सब कुछ किससे सिमिलर था? मैंगो ट्री से सिमिलर था। ओके, इवन द कलर, शेप, स्मेल एंड टेस्ट वर ऑलमोस्ट द सेम। इवन उसके फ्रूट्स में जो स्मेल आ रही थी, उसका जो कलर था, उसका जो टेस्ट था, वो भी सिमिलर टू मैंगो ट्री। ऑलमोस्ट द सेम यानी कि ऑलमोस्ट यानी कि एकदम मिलता जुलता था, एज दैट ऑफ अ मैंगो ट्री, बट अनलाइक अ मैंगो, लेकिन थोड़ा सा भिन्न था। अनलाइक मीन्स समथिंग डिफरेंट। द वॉटनट फ्रूट वॉज पॉइजनस। ये जो वॉटनट ट्री के जो फ्रूट्स थे वो पॉइजनस थे। ऐसा कब पता चला वो हम आगे देखेंगे। पॉइजनस मीन्स जहरीला। The caravans that went ahead came upon the walnut tree. जो कारवां आगे चल रहा था, कारवां एक से ज़्यादा यानी कि कई सारे ट्रेडर्स से बना होता है। सो वो एक लाइन में चलता रहता है। सो जो जिस लाइन में आगे चलते वक्त जिन लोगों ने, जिन ट्रेडर्स ने वो walnut ट्री को वहाँ पर देखा तो वो वहाँ पर रुक गए। The traders were all hungry and the walnut fruits look like delicious ripe mangoes. ये जो कारवां के जो लोग थे वो चलकर बहुत ही थक गए थे और हंग्री मीन्स के भूखे भी हुए थे, और उन्होंने देखा कि walnut ट्री के ऊपर जो फ्रूट्स लटक रहे हैं वो सेम लाइक मैंगो, पके हुए आम की तरह ही है। डिलिशियस राइप मैंगो यानी कि स्वादिष्ट पके हुए आम। बट दे रिमेंबर्ड देयर लीडर्स वार्निंग, किंतु उनको अपने लीडर की जो वार्निंग, लीडर ने क्या वार्न किया था, क्या आगाह किया था कि मुझे पूछे बगैर जब तक मैं आपको ना हाँ बोल दूँ तब तक आपको कोई भी फ्रूट, फल, फ्लावर, पत्तियाँ, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपने पहले कभी ना खाई हो वैसी खानी नहीं है। सो उन सभी जो पहले पहुंच गए थे कारवां के ट्रेडर्स, उनको याद थी वार्निंग जो उनके लीडर ने उनको कारवां शुरू करने से पहले बताई थी।
They decided it would be safer to pay heed to the warning given by their कारवा leader. safer यानी कि सुरक्षित and pay यानी कि देना, हीड यानी कि सावधानी, HEED हीड यानी कि सावधानी। फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ पर लीडर ने जो वार्निंग दी थी उसके बारे में समझकर सावधानी रखना ही बेहतर रहेगा। When the leader arrived at the tree, जब कारवा जहाँ पर रुका था उस पेड़ के पास, उसका लीडर वहाँ पर पहुँचा, the ones who had seen the tree and its delicious fruit asked, उनमें से एक ने जो डिलीशियस फ्रूट और ट्री देखा था उसने पूछा, सर व्हाट इज दिस ट्री? सर ये कौन सा पेड़ है? इट इज सेफ टू ईट इट्स फ्रूट्स, क्या इसके फ्रूट्स खाना सेफ रहेगा? आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग द ट्री, इन्वेस्टिगेटिंग मीन्स हियर चेकिंग वेरी केयरफुली। फिर कारवा के लीडर ने, एक ट्रेडर ने पूछा कि सर ये पेड़ किसका है, क्या इसके फ्रूट हम खा सकते हैं? इट इज़ सेफ टू ईट, क्या ये खाना सेफ रहेगा? फिर ये जो कारवा का लीडर है उसने उसका मुआयना किया यानी कि इन्वेस्टिगेशन किया, चेक आउट वेरी केयरफुली एंड देन द लीडर रिप्लाइड, और उसके बाद में लीडर ने रिप्लाई किया, नो नो नहीं, बिल्कुल नहीं, दिस में लुक लाइक अ मैंगो ट्री, ये हाँ बेशक ये मैंगो ट्री की तरह लग रहा है, बट इट इज़ नॉट, पर ये नहीं है। इट इज़ अ पॉइजनस वॉटनॉट ट्री, ये एक पॉइजनस वॉटनॉट ट्री है। डोंट इवन टच इट, गलती से भी उसे छूना भी मत। इन द पास्ट, भूतकाल में, मैनी सच कारवान्स हैड कम टू द वॉटनॉट ट्री, हमारे जैसे कई कारवास इस वॉटनॉट ट्री के पास से गुजरे हैं। The people in the caravans had eaten its poisonous fruits and died in their sleep during the night. जो पीपल्स, जैसे कि आप सब अट्रैक्ट हुए हो इसके फ्रूट्स देखकर, वैसे ही कई पीपल्स जो कारवान्स में थे वो भी अट्रैक्ट होकर उन्होंने ये फ्रूट्स खाए। एंड देन क्या हुआ, जब वो रात को सो रहे थे तब ड्यूरिंग देयर स्लीप दे डाइड, उनकी स्लीप के दौरान वो सब मर गए। The next morning, और अगली सुबह, the local villagers would come to the campsite. कैंपसाइट मीन्स जहाँ पर ये कैंपिंग की गई है वो जगह जहाँ पर ये वॉटनॉट ट्री सिचुएटेड है, वहाँ पर कैंप लगाया है जो कारवान वाले लोगों ने। वो कैंप साइट पर अगली सुबह विलेजर्स, जो गांव है नेक्स्ट गांव, उसके विलेजर्स यानी कि गांव वाले लोग आते हैं। एंड आफ्टर बैरिंग द डेड, यानी कि बैरिंग यानी कि दफन करना, जो लोग मर गए हैं कारवान में से वो पॉइजनस फ्रूट खाकर उनको दफन कर देते हैं। एंड दे वुड टेक अवे ऑल द गुड्स एंड बुलोक कार्ट्स ऑफ द कारवान। ये विलेजर्स क्या करते हैं, जो लोग मर गए हैं कारवान के, उनकी दफन विधि करके, उनको दफन करके उनका जो माल सामान है, उनका जो गुड्स है, उनके जो बुलोक कार्ट्स है, राइट, उन सबको वो गांव वाले ले जाते हैं। दिस टाइम टू, इस बार भी क्या, द विलेजर्स थॉट दे वुड डू द सेम, विलेजर्स ने ऐसा ही सोचा होगा कि हम इस बार भी ऐसा ही करेंगे। They had seen the caravans near the tree the previous day. उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने यही सोचा कि इस बार भी हम करेंगे। प्रीवियस डे यानी कि अगले दिन उन्होंने उस कारवा को वहाँ पर देखा, ठीक है। देन क्या हुआ, एट डाउन द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, द विलेजर्स रन टूवर्ड्स द वॉटनॉट ट्रीज, ठीक है। अगले दिन जब विलेजर्स ने वो कारवा वहाँ पर ट्री के पास देखा तब उन्होंने सोचा कि ठीक है अगली सुबह वो सब ये फ्रूट खाकर मर जाएंगे और हम सब जाकर ये जो कारवान्स का जो गुड्स है, जो माल है, जो भी उनकी धन संपत्ति है उसको लूट कर ले आएंगे। फिर अगले सुबह को वो सब निकल पड़े कारवान्स को लूटने के लिए, ठीक है। बट वेन दे रीच द वॉटनॉट ट्री, लेकिन जब वो वॉटनॉट ट्री के पास पहुँचे, दे गोट अ रियल सरप्राइज, वो एकदम से ही आश्चर्यचकित हो गए।
All the traders who had come in the caravans were alive and well. हर बार क्या होता था कि जब वो पहुंचते थे गांव वाले लोग, तब सब मरे हुए वहाँ पर मिलते थे, फिर वो उनको दफन कर देते थे और उनका सारा सामान लूटकर चले जाते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग ही हुआ। वो सब एकदम आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या, सारे के सारे ट्रेडर्स अलाइव है यानी कि जिंदा है, एंड वेल यानी कि अच्छे हैं, सुरक्षित है। They were cooking their own food and getting ready to eat. वो सब अपना खुद का खाना पका रहे हैं और खाने के लिए रेडी है। Astonished यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना, very surprised. Astonished the villagers asked the caravan leader. आश्चर्यचकित यानी कि सरप्राइज हुए गांव वालों ने कारवां के लीडर को, वाइस ट्रेडर को पूछा। क्या पूछा? हाउ डिड यू नो दिस वॉज नॉट अ मैंगो ट्री? आपने ये कैसे जान लिया कि ये जो ट्री है वो मैंगो ट्री नहीं है? ही रिप्लाइड, हु? कारवां लीडर। ही रिप्लाइड, आई नोटिस टू थिंग्स अबाउट द ट्री। मैंने दो चीज़ें इस ट्री के बारे में नोट की। विच? फर्स्ट, दिस ट्री इज़ ईजी टू क्लाइम। फर्स्ट थिंग ये थी कि ये जो ट्री का स्ट्रक्चर है वो ईजी टू क्लाइम यानी कि आसानी से इस ट्री के ऊपर चढ़ा जा सकता है। एंड सेकेंड और दूसरी थिंग, इट इज़ राइट नेक्स्ट टू अ विलेज। पहली थिंग क्या थी कि भाई ये जो ट्री है वो ऐसा है कि उसके ऊपर आसानी से चढ़ा जा सकता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये एग्जैक्टली विलेज के नज़दीक है। When it is so easy to climb this tree, how is it that no one has plucked the fruits? अगर ये इतना easy है चढ़ने में और गांव के पास में ही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने आकर इसके फ्रूट को प्लक यानी कि तोड़ा नहीं? If the fruits on such a tree remain unplugged, ये जो सारे फ्रूट्स है ट्री के ऊपर वो सारे अनप्लग्ड है यानी कि फ्रूट जो ट्री है उसके ऊपर लटके हुए हैं। They cannot be safe to eat, ये खाने के योग्य नहीं है। The leader's wisdom saved the कारवां, जो लीडर था उसका जो वाइजडम यानी कि उसकी जो बुद्धि थी उसने पूरे कारवां की जान बचा ली। लिसन अगेन, लीडर जब गांव वालों ने आकर लीडर से पूछा कि भाई आपने ये कैसे जान लिया कि ये जो ट्री है वो मैंगो ट्री नहीं है, तब लीडर ने क्या बताया? दो थिंग। एंड विच टू थिंग्स आर? फर्स्ट कि ये एक तो इजी टू क्लाइम है एंड अदर इनके जो फ्रूट्स है वो अनप्लग्ड है, बजाय कि ये गांव के एकदम नज़दीक है। एंड ये कॉमन है ट्री, कोई भी आकर इसके फ्रूट्स तोड़ सकता है, फिर भी सारे के सारे फ्रूट्स पेड़ के ऊपर लगे हुए हैं। सो इट मीन्स कि ये फ्रूट खाने के योग्य नहीं है। अगर खाने के योग्य होते तो यहाँ पर कोई फ्रूट बचता क्या? नहीं। और अगर सारे के सारे फ्रूट झोंके त्यों वहीं पर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फ्रूट्स है वो खाने के योग्य नहीं है। एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी कि उसकी वाइजडम, जो लीडर था उसकी वाइजडम की वजह से पूरा कारवां मरने से बच गया, क्योंकि वो लोग तो खाने ही वाले थे फ्रूट्स को देखकर उसकी टेस्ट, उसको स्मेल अट्रैक्ट हो गए थे, भूखे थे, थके हुए थे, तो खाने ही वाले थे। लेकिन उनको याद आया कि कारवां के निकलने से पहले, शुरू होने से पहले जब फॉरेस्ट आया तब हमारे लीडर ने हमें वार्न किया था, हमें आगाह किया था कि ये एक जहरीला जंगल है, यहाँ के कोई भी फ्रूट्स, पत्तियाँ, फ्लावर्स कुछ भी आपको इवन टच भी नहीं करना है। ये याद आ जाने पर उन लोगों ने वेट किया अपने लीडर के पहुंचने का वॉटनट ट्री के पास एंड देन उनको पूछा कि भाई ये फ्रूट हम खाए। देन वो ट्रेडर ने ना बोल दिया कि नहीं ये मैंगो ट्री नहीं है, ये क्या कौन सा ट्री है? वॉटनट ट्री। और उसके इंस्ट्रक्शन को ओबे करके, फॉलो करके ये जो पूरा कारवान था वो बच गया, बिकॉज ही वॉज वेरी वाइज। ओके, सो ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही समझने वाली एक स्टोरी है कि हमें हर एक चीज़ को अच्छे से देखना, परखना, समझना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि चलो कुछ अट्रैक्टिव चीज़ देख ली तो ले ली, नो नेवर। हमें समझना चाहिए कि भाई इतनी अट्रैक्टिव, इतनी दुर्लभ चीज़ इतनी इजीली अवेलेबल है तो इसके पीछे कोई तो रीज़न होगा, ठीक है। सो उस रीज़न को हमें जानना और समझना चाहिए एंड
फॉलो, उसे फॉलो करना चाहिए कि ऐसा रीज़न है तो हमें ये करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इट्स हार्ड वर्ड्स। Okay, so I am going to write its hard words and glossary words here, and I will explain all the hard words one by one. Okay. Okay students, now I am going to explain all the hard words from this unit, the word not tree. Okay, I am going to explain and pronounce all these with its meaning. Okay, so the very first one is trader. 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 Trader means vyapari. Travel. 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 Travel means musafari karna. Goods. 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 Goods means माल सामान. Warned. Warned. Warn means आगाह करना, सूचित करना, किसी डेंजर थिंग के लिए पहले से ही प्रीवियसली वॉर्न करना. Poisonous. 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 Poisonous means जहरीला. Next, respectfully. 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 Respectfully means आदर से, मान से, सम्मान से. Very similar. Very similar. Verysimilar. Verysimilar. Very similar means मिलता जुलता. Next, unlike. Unlike. Unlike means भिन्न, अलग, different. Next, delicious. Delicious. Sorry. Delicious. Delicious. Delicious यानी कि स्वादिष्ट. Next, ripe. ripe. Ripe means पका हुआ. Next, safe. safe. Safe means सुरक्षित. Hid. Hid. Hid means सावधानी. Leader. Leader. Leader means नेता. Arrive. Arrive. Arrive means पहुंचना. Campsite. I repeat, campsite means campsite. Campsite means जहाँ पर कैंपिंग की गई हो वो जगह. नेक्स्ट, burying. I repeat, burying. Burying. Burying means डेड बॉडी को जहाँ पर दफनाया जाता है वो दफनाना उसको इंग्लिश में बोलते हैं burying. नेक्स्ट, towards. Towards. Towards means की ओर, की तरफ. Surprise. Surprise. Surprise means आश्चर्यचकित होना. Alive. Alive means जिंदा होना. Notice. Notice. Notice means सूचना. Next, climb. Climb means चढ़ना. Plucked. Plucked means तोड़ना, चुनना. यूजुअली ये वर्ड
फ्रूट्स या तो फ्लावर्स को तोड़ने के लिए ट्री में से यूज़ किया जाता है। प्लक्ड का मतलब होता है फ्रूट का या तो फिर फलों का तोड़ना ट्री में से। ऐसा ही एक वर्ड दूसरा भी था, अनप्लग्ड। ये इसका ऑपोजिट है और उसका मतलब क्या होता है, ना तोड़ना, वहीं पर रहने देना। नेक्स्ट, विजडम, WISDOM, WISDOM, विजडम मीन्स बुद्धिमता, बुद्धि, समझदारी, उसको क्या बोलते हैं, विजडम। ओके स्टूडेंट्स, सो राइट डाउन दोज वर्ड्स इन योर बुक्स। एंड हाँ, मैंने आपको बताया था कि आपको इंग्लिश के फेयर बुक में कैसे लिखना है। सो यू हैव टू स्टार्ट विद द हार्ड वर्ड्स। पहले आपको यूनिट का नेम लिखना है, लेसन नंबर 7, द व्हाट नॉट ट्री, एंड देन उसके ऊपर लिखना है हार्ड वर्ड्स। एंड इस तरह से नंबर्स देखकर अच्छे हैंडराइटिंग में आप सभी को ये हार्ड वर्ड्स लिखने हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। इन अवर नेक्स्ट क्लास आई विल गिव यू ग्लोसरी एंड इट्स मीनिंग इन डिटेल्स। ओके, सो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।